السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے شہادت حضرت امام حسین۔ آج اس ویڈیو میں یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شہادت علی اصغر جب تمام جانثار ایک ایک کر کے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول پر اپنی جانیں قربان کر چکے تو حضرت امام عالی مقام خیمے میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے 6 ماہ کے فرزند ارجمند حضرت علی اصغر شدتی پیاس سے بےتاب ہیں، اور یہ چھوٹا سا بچہ جب اپنی خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرتا ہے، بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو ماں کی مامتا تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ پھر کبھی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنی سوکھی زبان دکھاتا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ ماں کا دل بچے کی بے چینی دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ امام پاک کے زوجہ محترمہ جناب سیدہ فاطمہ کی بہو اور علی اصغر کی والدہ ماجدہ نے امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے سرتاج، میرا دودھ خشک ہو چکا ہے، پانی کا قطرہ تک نہیں، مجھ سے اس بچے کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، میرا کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے، خدا را اس کو لے جائیے اور ان سنگ دلوں کو میرا بچہ دکھائیے۔ وہاں کئی لوگ سعادت مند ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے لال کی حالت دیکھ کر کوئی اس کے حلق میں 2 قطرے پانی ڈال دے اور اس شیخوار کی جان بچ جائے۔ حضرت رباب کی درخواست پر امام عالی مقام علی اصغر کو سینے سے لگائے کہ سیاہ دل دشمنوں کے سامنے لائے اور فرمایا، ان پھول سی رخساروں کے کھلانے کو تو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو۔ فرمایا، اے جفاکاروں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور یہ ننھا سا پھول میرا لخت جگر ہے، اس کا مٹکا ڈھل چکا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں، یہ زندگی کے آخری سانسوں کا مہمان ہے۔ بچوں پہ تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، اور تم مسلمان کہلاتے ہو اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ بچہ کون ہے۔ افسوس، شکیل قلب انسانوں کے دل اتنے پتھر ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس ننھے شیرخوار اور چند سانسوں کے مہمان پر بھی رحم نہ کیا، بلکہ ازلی بدبخت ہرمل نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق سے گزر کر امام عالی مقام کے بازو پر جا لگا۔ امام عالی مقام نے وہ تیر علی اصغر کے حلق سے کھینچا اور معصوم نے ایک چھوٹا سا آخری سانس لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ننھے شہید کو امام عالی مقام نے اٹھایا اور خیموں کی طرف تشریف لائے۔ سکینہ خوش ہو گئیں کہ شاید پانی مل گیا ہے، اس لیے کہ جب جناب علی اصغر کو خیموں سے لے جایا گیا تھا تو وہ رو رہے تھے اور جب واپس آئے تو خاموش تھے، مگر امام عالی مقام نے خیمے میں پہنچ کر اپنے لخت جگر کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہوئے فرمایا، میرے اصغر کو فرات کا پانی نہیں، حوض کوثر کا پانی ملا ہے۔ اس مظلوم و معصوم کی نعش مبارک کو دیکھ کر خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ شہادت امام عالی مقام علیہ السلام۔ کربلا میں آپ کے تمام عزیز و اقارب محبت و جان نثار جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ خاندان رسالت کے ایک پھول امام زین العابدین بستر علالت پر لیٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ امام عالی مقام نے خود میدان جنگ جانے کی تیاری فرمائی۔ بسری قبا زیب تن فرمائی اور امامہ سر پر باندھا، پھر ذوالفقار حیدری کو دست اقدس میں لیا۔ پھر سیدہ زینب سے فرمایا، اے میری پیاری بہن، تو مدینہ منورہ کی پرکیف گلیوں سے لے کر مکہ معظمہ کے حسین بازاروں تک اور پھر مکہ معظمہ سے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں تک تو نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔
तेरी इस वफादारी पर तमाम जहान की औरतें फख्र महसूस करती रहेंगी। प्यारी बहन, अब मेरे इम्तहान का वक्त ख़त्म होने वाला है और तेरा इम्तहान शुरू होने वाला है। तूने मेरे जवान अली अकबर को कुर्बान होते देखा, अली असगर को तीर खाते देखा, कासम की जवानी लुटती देखी, अब्बास के बाजू कटते देखे, अपनी गोद खाली होती देखी, अपने जिगर के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देखा। तूने करबला का खूनी मंजर देखा, मगर साबरा शाकरा रही। ऐ बहन, जब तुम अपने भाई का सर तन से जुदा होते देखे तो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना। मुझे मालूम है कि इस तपते हुए रेगिस्तान में काफिले के साथ पैदल चलना पड़ेगा, फिर तुम्हें कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करना होंगे। पाँव में बेड़ियां और हाथों में जंजीरें पहनाई जाएंगी। मगर ए बहन, तुम साबरों की औलाद हो, साबरों की माँ हो और साबर की बहन हो, लिहाजा सबर करना। मैं अपनी बच्ची सकीना को तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, उसे रोने और एहसास यतीमी ना होने देना। फिर जब मेरे नाने की मदीना जाओ तो नाना जान के दरबारे गोहर बार में मेरा सलाम अर्ज करना। फिर अमाम आली मकाम अपने बीमार बेटे अमाम ज़ैनुल आबदीन के पास तशरीफ ले गए। क्या देखते हैं, हजरत ज़ैनुल आबदीन भी मैदान करबला में सर कटाने के लिए बिस्तर अदालत से उठने की कोशिश करते हैं, मगर बीमारी की वजह से उठने की ताकत नहीं रही, जिसमें अतहर नडाल हो चुका है। आपने फरमाया, बेटा सज्जाद, तुम बीमार हो, आराम करो, तुम्हारा मैदान में जाने का वक्त नहीं। तुम अगर मैदान में जाओगे तो उन पर दो नशीनों का पहरा कौन देगा? तुम अगर मैदान में जाओगे तो इन पर्दा नशीनों का पहरा कौन देगा? काफिला मदीना मनवरा में कौन ले जाएगा? बेटा, तुमने हुसैनी सईदों का सिलसिला कुतुब चलेगा। बेटा, तुमने हुसैनी सईदों का सिलसिला नसब चलेगा। राहे खुदा में तू भी मुसीबत आ जाए बर्दाश्त करना और सब्र रज़ा का दामन ना छोड़ना और मेरे नाना जान की शरीयत मुतहरा पर कारबंद रहना। जब मदीना मनवरा में पहुंचो, मेरे नाना जान और मेरी अम्मी जान की खिदमत में मेरा सलाम कहना और मेरे नूरे नज़र लगते जिगर प्यारे बेटी सुगरा को मेरी तरफ से दस्ते शफकत और प्यार देना। फिर इमाम अली मकाम ने अपनी दस्तार मुबारक जनाब सज्जाद के सर अकदस पर बांधी और फिर इस पैकरे सब्रो रज़ा बीमार करबला को बिस्तर अलालत पर लटा दिया। फिर मैदान जंग की तरफ रवानगी का वक्त आ गया तो इस दर्दनाक मंजर ने पर्दा नशीनों के दिल को लरजा के रख दिया। आपकी प्यारी बच्ची हजरत सकीना आपसे लेट गई और रोते रोते अर्ज किया, बाबा जान, आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ से कोई जिंदा दामन नहीं। बाबा जान, आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया। मेरे बाबा सकीना यतीम हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी, हमें मदीना शरीफ कौन पहुँचाएगा? इमाम अली मकाम ने बच्ची को तसल्ली दी। फिर मैदान जंग की तरफ चलने लगे तो सवार होते वक्त अलविदा कहने वाला कोई ना था। कुछ बेकस दे बस यतीमों और पर्दा नशीनों खवातीन की आहें थी। कुछ बच्चों की यतीमी, बेवा औरतों के बेबसी का एहसास आपका दामन थामे हुए थे। आंसू किसका गैर मुनकती सिलसिला आपकी राह में छिड़काव कर रहा था। गैर मुनतका सिलसिला आपकी राहों में छिड़काव कर रहा था, इसलिए वक्त इमाम आली मकाम की आंखें इस ख्याल से पुरनम हो गईं। इमाम आली मकाम ने अहले खैमा को अलविदा कहा और मैदान कारज़ार की तरफ चल पड़े।
मजलूम करबला सैयद शुहदा ने मैदाने करबला को चारों तरफ देखा, हर तरफ दुश्मन तलवारें लिए खड़े थे। आपने तमाम हुज्जत के लिए फरमाया, ऐ कूफा वालो, मैं इसी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, और इमामुल अंबिया शहनशाह हर दूसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जी हसन और हुसैन मेरे दोनों नवासे अहले बहशत के सरदार हैं। तुम में से कौन है जो इस फरमान मुस्तफ़ा से इनकार कर सकता है? बेगैरत इंसानों, हया करो, रोज़े क़यामत मेरे खून नाहक का मालिक कौन होगा? अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर उजाड़ने वालों, अपने इबरतनाक अंजाम को सोच लो। तुम लोगों ने खुद कासद और खतूत भेजे और हमने इतमाद किया और यहाँ चले आए, और तुमने चमने ज़हरा के पानी का मशकीज़ा भरकर कंधे पर लटकाया, और तुमने चमने ज़हरा के लहलहाते हुए फूलों को काटा। तुमने मेरे जानसारों और बच्चों को प्यासा शहीद किया। अब भी वक्त है, तौबा कर लो और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन ना करो। रात में फेंक दिया। फिर आपने अपने यजीदियों ने जवाब दिया, आप यजीद की बैत कबूल कर लें और वरना जंग के लिए तैयार हो जाएं। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना हसन रज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जवाब दिया, ये सर कट तो सकता है मगर किसी फासिक व फाजिर के सामने झुक नहीं सकता। कब था पानी यजीद कलीद की बैत वाला बैत से मेरा इनकार है। फिर लश्करी आदात से इब्ने शान ने तीर चलाया। गाजी सवार था और प्यासी के खेमे में जाने के लिए तैयार था, जो अमाम अली मकाम के सर के ऊपर से गुजर गया था। चुनाचे हक के अलमबरदार हाशमी शहजादे शेर खुदा के नूरे नजर ने जुल्फकार हैदरी को यजीदी लश्कर में जुम्बश दी। हो गया कि अगर हजरत अब्बास पानी का मशकीज़ा लेकर खैमों में पहुंच गए तो तकब्बुर व गुरूर के साथ लड़ने के लिए निकला। जुल्फकार हैदरी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसका भाई बदला लेने के लिए निकला। आपने उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। के बाद दीगरे 8 कूफियों को वासिल जहन्नम किया। हाशमी शहजादे के अंदाजे जंग को देखकर उमरू बिन साद पुकार उठा कि उसके मुकाबले को एक करके ना जाओ बल्कि मिलकर हर तरफ से हमला कर दो। चुनाचे चारों तरफ से हमला हुआ। लम्हे ही गुजरे थे तो क्या देखते हैं कि दुश्मनों की सपाह ने मिलकर उन पर हमला कर दिया है। अली के शेर की तलवार दाएं तरफ साइका की तरह कहरे खुदा बनकर टूटी। पूरे लश्कर में हलचल मच गई और हर सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, जान के लाले पड़ गए। उम्रों पक्कारा यजीदियों सिपाहियों, तुम्हारी सिपाहगारी कहाँ गायब हो गई है? एकदम मिलकर तीरों की बारिश कर दो। चुनाचे हर तरफ से तीरों की बारिश हो गई। बिलाखिर एक मलूम ने तीर चलाया जो पेशानी हजरत अम्माम पर लगी। ये वो पाक पेशानी थी जिसे रसूल अल्लाह चुमा करते थे। आपको एक चक्कर आ गया, एक शकीनी धोखे से बच्ची का वार किया। नवासे रसूल शेर खुदा का नूरे नजर खातून जन्नत लगते जिगर जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर गया। बच्चों की प्यास बुझाने की कोई बेतदबीर कारगर शमरीन बेदीन आगे बढ़ा और अमाम पाक के सीना अतहर पर सवार हो गया। जख्मी शेख ने ललकार कर कहा कि कौन है? कहने लगा शमर। फरमाया तेरा क्या इरादा है? उसने कहा आपको शहीद करने का। फरमाया वक्त कौन सा है? कहने लगा जुमे का। फरमाया फिर जरा ठहर जा, मुझे अपने रब की नमाज पढ़ लेने दे। खून से ये वजू तो पहले ही हो चुका था। था आंख खोली और उसकी फिर नमाज शुरू फरमाई। जब सजदा किया जालिम ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। करके आया था पूरा शिमर का खंजर। फिर आपके रूह कफ से गुले खुश्क पे चलता रहा। शम्माए हक रोशन रही, हक का दिया जलता रहा। जालिमों ने आपको शहीद कर दिया। उस पर भी हजरत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद
حضرت قاسم اس پر بھی کوئی شک نہیں، بلکہ انہوں نے سر انور نیزے پر چڑھایا صدقے جاؤں سیدہ کے لال پہ، جس نے نیزے پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی۔ حضور حاضر ہوئے، پھر ان سنگ دلوں نے خیمے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جانے کی اجازت دیں۔ آپ نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، اس بے کسی کے عالم میں رات ہو گئی۔ شہداء کرام کی لاشیں بے گورو کفن پڑی تھی، جنہیں دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بیمار زین العابدین اور باقی پردہ دار عورتیں اور بچے تھے، یزیدی جشن منا رہے تھے۔ ادھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے شہداء کرام کی مقدس لاشیں یکجا کتنے دیکھے آ گیا جوش ساتھ۔ جب اپنے بھائی کو بے گورو کفن لاشا دیکھا تو آنسو جاری ہو گئے، لاشے سے لپٹ گئی اور روتے روتے عرض کی اور فرمایا تھا، بیٹے جب تم پر کوئی سخت ترین مصیبت اور ابتلا و آزمائش کا وقت آ جائے تو حضرت امام حسین کا قافلہ جو تھا، آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت کا دور قافلہ المخ سے رات گزری، نماز فجر کے وقت ابھی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ظالموں نے اس لٹے ہوئے قافلے کو قیدی بنا لیا۔ امام زین العابدین بیمار کو ہتھ کڑیوں اور بیڑیاں ڈال دیں، پردہ نشین بیویوں یتیم بچوں کو قیدی بنا کر اونٹوں پر بٹھا دیا اور پھر قافلے کو کوفے کی جانب لے کر چلے۔ کوفے پہنچ کر بازاروں میں پھرایا گیا، پھر یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ مولانا یزید کے دربار میں اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی گئیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ دیکھ کر فرمایا، بیٹا تم ابھی تاریخوں میں آتا ہے کہ یزید پلید کے ظلم و ستم اور وحشت بربریت کو دیکھ کر اہل شام بھی اس کی مخالفت کو اتر آئے۔ ان حالات کے پیش نظر اس بدبخت ازلی نے خاندان مصطفیٰ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ لٹا ہوا قافلہ مدینہ رسول کی طرف جا رہا تھا۔ مدینہ شریف کا سفر گڑتے گڑتے چند منزل ہی باقی رہ گیا تھا۔ ابھی پہاڑوں کے جگر کانپ رہے تھے، زمین تھرتھرا رہی تھی، آسمان کا کلیجہ دہل رہا تھا۔ کربلا کی فریادیں مالکی کونین کے دربار میں جا رہی تھی۔ دلہا بنا دو سیدہ زینب نے قافلہ مقام کو بلایا۔ ابن حسین نہیں، اس کا بیمار عابد تھا، یتیم بچے تھے، شہداء کی بے خان تھی۔ بالآخر قافلہ چلتے چلتے جب دوپہر کی وقت مدینہ شریف کی حدود میں داخل ہوا اور پھر سینے سے لگا کر گھوڑے پر سوار کیا، قاسم چلے۔ پھر آپ نے میدان جنگ میں مہار طلب کیا، داخل ہوا تو سینے کا درد اور بڑھنے لگا، جیسے کوئی رسول نزدیک آ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد مدینہ شریف کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہوئیں، پھر کھجوروں اور سبزہ زار وادیاں دکھائی دینے لگی۔ جب مدینہ منورہ کی آبادی نظر آئی تو صبر کے پیمانے لبریز ہو کر چھلکنے لگے۔ سیدہ زینب اور عابد بیوار جذبات کی تاب نہ لا سکے، ان کی کہہ دیا، ان کی پردرد آنکھوں سے زمین تھرتھرانے لگی۔ ایک سوار نے سیدوں کے لیے سیدوں کے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا تو اس قافلے کے مدینہ شریف واپس آ رہا ہے۔ یہ خبر کا سننا تھا کہ مدینہ شریف میں کفران برپا ہو گیا۔ لوگ روتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر آئے۔ جو ہی سیدوں کے قافلے پر نظر پڑی تو آہو فغان کی صدائیں بلند ہونے لگیں، لوگ دھڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھر روضہ رسول پر پہنچ کر بھائی جان کا سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، نانا جان آپ کا سارا قربان لٹ گیا، آپ کے نواسے اور آپ کے لاڈلے حسین کو آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا۔ آپ کی امت نے خدا کی قسم اگر یہ میری گود خالی کر دی، علی اصغر کو پیاسا شہید کر دیا، عباس علمدار کے بازو کاٹے، علی اکبر اور امام قاسم کو پیاسا شہید کر دیا۔ حضرت زینب کی یہ فریاد سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ حضرت سغرا بیمار بار بار اپنی والدہ اور پھپھی سے پوچھنے لگی،
हमारे बाबा जान कहाँ हैं? औन मोहम्मद कासिम अब्बास कहाँ मेरे हैं? साइज पास के और लिए प्यामे अली अजल अकबर बांधा और नन्ना था अली और असगर हजरत कहाँ बहाने छोड़ आई नबहा हैं? जल्दी कर बिलाखर इसके दरूदे मुकाबले करने अदम के का लिए मैदान मारा, में निकल। अर्जुक ने कहा बिलाखर दर्दे बाखुदा अदम मैं का इसके मारा, मुकाबले में शहीदों मैं का नहीं ये जाऊंगा। काफिला अगर अपने तू इसरार अपने करता है घरों तो मैं में अपने लड़के सुकूनत को इसके पजीर मुकाबले हो में भेज गया। देता हूँ। चुनाचे वाक़यात इमाम कासिम के शहादत इन साथ कुतब मुकाबला से करने के अखज़ लिए किए गए हैं अर्जुक कि के आइना चारों क़यामत बेटे के यके बाद दीगरे आए कुर्रा और के इमाम हम कासिम ने अपने सुवानिहा वासिले करबला। जहन्नम करके दम लिया। अब अर्जुक खुद तैयार हुआ और मुकाबला करने के लिए मैदान में आया और कहने लगा, है बच्चे, तूने मेरे चारों बच्चों को मार डाला है। अब वाक़यात आज़र खुद शहादत इन आपके कुतब साथ से अखज़ किए गए हैं अब कि आज़र ये अब आपके साथ खुद लड़ेगा। लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुक ने अपनी कि तलवार आईना खींची। क़यामत और इमाम आके कासिम ने गम भी तलवार सुवानिया लहराई। करबला, अर्जुक कहने लगा, ये शहीद हैं तलवार तो सब मेरी है, शहीद हो तू गए। कहाँ से ले रही है? फरमाया, तेरा बेटा मुझे ये यादगार दे गया है। कहने लगा, अफसोस, ये तलवार मैं 1000 दिनार में खरीदी थी। आपने फरमाया, फिक्र मत करें, इसके शरबत का तुझे जायका चखाऊंगा। चुनाचे अर्जुक कहने लगा, मैं बड़ा बहादुर हूँ। शाम और आग वाले मेरी तलवार की काट को जानते हैं। मेरी फन सिपागरी का लोहा बड़े बड़े पहलवान मान चुके हैं। आपने फरमाया, तो इंतहा दर्जे का ना तजर्बाकार है कि घोड़े की तंग का होश तक नहीं, तुम मुझसे क्या लड़ सकता है? उसने झुककर घोड़े के तंग को देखा। आपने ललकार कर एक ही वार किया और ये शकीक को भी जहन्नम वासिल कर दिया। फिर खुद ही लश्कर यजीद पर टूट पड़े। कई कूफी को फिन्नार किया और आखिर चारों तरफ से घेर लिया। इमाम आली मकाम एक रेत के टीले पर खड़े ये मंजर देख रहे थे और उन्होंने दुआ मांगी और ये कह रहे थे, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी कबूल की। फौज में नगारे बजने लगे, खुशी से इश्तिहा ने तबल बजाने शुरू किए। इधर सईदों के खैमों में कोहराम बरपा हुआ। कासिम की अम्मा जान ने कहा, ऐ बीबियो, रो नहीं, ये जो तबल बज रही है मेरे बेटे की मौत के नहीं। कासिम की मां ने इमाम अली मकाम की खिदमत में अर्ज किया, इमाम, मेरे कासिम की लाश ले आओ, मैं एक मरतबा अपने जनती दुल्हा को देखना चाहती हूँ। इमाम मैदान में पहुंचे। कासिम के लाशे पर घोड़े दौड़ रहे थे, जिस्म मुतहर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। इमाम फरमाते हैं, कासिम बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं जरा देर में पहुंचा। तेरी माँ से तेरी नाश लाने का वादा करके आया हूँ, अब लाशा उठाने के काबिल नहीं रहा। ये कहकर इमाम आली मकाम ने अपनी अबा बछाई और जिसमें मुतहर के टुकड़े टुकड़े उठाकर अबा में रखे और गठरी की तरह बांध कर खैमों में ले आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हजरत अली अकबर की शहादत हो गई। हजरत इमाम कासिम के बाद आपके नूर नज़र हजरत अली अकबर हाजिर खिदमत हुए। मैदान जंग में जाने की इजाज़त तलब की। अजीब वक़्त है कि 18 साल की कमाई का समर शफीक बाप की खिदमत में अर्ज करता है कि मुझे जान कुर्बान करने की इजाज़त दी जाए, बल्कि इस पर असरार कर रहा है। ये वो शहजादा अली अकबर है जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी, जिसको मेहरबान बाप ने कभी मगमूम नहीं दिया, जिसके सवाल को कभी रद्द नहीं किया था। मगर आज उसको इजाज़त दें तो किस बात की, उसका सवाल माने तो किस तरह। मगर उस शहादत के आरज़ूमंद का इसरार इस कदर बड़ा और उसको शौक़ शहादत ने ऐसा दारफ्ता कर दिया कि इमाम आली मकाम को इजाज़त देना ही पड़ी। फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि बूढ़ा बाप जो सुबह से लाशों को उठा उठा कर थक चुका है, उसने किस हौसले के साथ अपने 18 साल के नौजवान बेटे के सर मार अपने हाथों से दस्तार बांधी, हाथ में तलवार दी और फिर अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन, मेरे दुल्हा का आखिरी मर्तबा नज़ारा कर लें, ऐसकीना अपने भाई की आखिरी बार जियारत कर लें। फिर वो समा भी चश्मे फलक ने देखा जब जवान अली अकबर अपने भाई ज़ैनुल आबदीन बीमार को आखिरी सलाम करने के लिए खैमे में गए। देती थी अहले बैत दुहाई इमाम की, तस्वीर जा रही है खैरुल अनाम की।
हुसैनी दुल्हा घोड़े पर सवार हुआ और ये कहते हुए मैदान में आए, अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तजा मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफ़ा मेरा। आपने मैदान करबला में अपनी तलवार को लहराया और ये रजिस पड़ा, अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली अहलुल बैत। जिस वक़्त आपने ये शेर पढ़ा तो मैदान करबला का जर्रा जर्रा कांप उठा। फिर फरमाया, ऐ औलादे रसूल, अल्लाह के खून के प्यासे यजीदियो, आओ मैदान में आओ, शेरे हैदरी की तरफ आओ। तो लश्करे आदाद में से किसी को भी मुकाबला में आने की जरूरत ना हुई। बिलाखिर आप खुद ही यजीदी फौज पर हमला आवर हो गए और आपकी तलवाराने पर कहरे खुदा बनकर बरसी। फिर हुसैनी शेर ने जिस तरफ रुख किया उन सफ़ों की सफ़े उल्टा दी। जब लड़ते लड़ते शिद्दते प्यास से नडाल हो गए और वापस खैमों की तरफ आए और अर्ज़ की, अब्बा जान, प्यास के गलबे की वजह से सख्त बेताब हूँ। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे की प्यास देखी, मगर यहाँ पानी कहाँ था जो इस तिश्ना शहादत को देते। दस्ते शफ़क़त से चेहरा अनवर का गिरदो गुबार साफ किया और फरमाया, बेटा, अब तुम्हारी प्यास खत्म होने का वक्त आ गया है। अब साकी कौसर के हाथ से जामे कौसर पीना और उसके बाद तुम्हें प्यास ना सताएगी। बेटा, मैं जब कभी प्यासा होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुंह में ज़बान मुबारक दे दिया करते थे। आज इस प्यास की हालत में तुम मेरी ज़बान चूस लो, तुम्हें तस्कीन हो जाएगी। आपने ज़बान अक़दस को चूसा और कदरे तस्कीन हो गई। और अली अकबर जवान भी मैदान का कारज़ार की तरफ रवाना हुए और लश्कर आदाद को ललकारा। उमर बिन साद आपकी तलवार की काट देख चुका था। तमाम यजीदी फौज को इस शेर की ताकत और जुर्रत का अंदाज़ा हो चुका था। अब कौन था जो इस मर्दे आहन के मुकाबले के लिए बाहर निकलता? उमर बिन साद ने कहा, ऐ सिपाह कूफा और शाम, तुम में से कौन है जो इनका सर काट लाए और उसे अनाम के तौर पर मूसल की हुकूमत दी जाएगी। इस ऐलान ने तारक बिन शीस को पागल कर दिया। ये शकी आपके मुकाबले के लिए आया, अनाम के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। हाशमी शहजादे से मुकाबला हुआ, सैफ अकबरी चमकी और एक ही वार ने उसे जहन्नम की वादी में